اللہ حافظ۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل امراض۔ اس کی جس نے واقعہ دل دلا دی ہے، جی ہاں، وہ لمحہ جب سام کا بھائی فراز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ فراز کا قتل ایک ایسا صدمہ جس نے سام کی دنیا اندھیر کر دی۔ وہ فراز جو ہمیشہ ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لاتا تھا، آج خود کسی کا شکار بن گیا۔ لیکن ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کے قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ اب بات کرتے ہیں اس لمحے کی جب سام کو پتہ چلتا ہے کہ فراز کے مرنے سے کچھ لمحے پہلے وہ سارا سے بات کر رہا تھا کہ سارا جس سے وہ دل و جان سے محبت کرتا تھا، وہی سارا جس سے فراز اپنی دلہن بنانا چاہتا تھا۔ اس کے گھر والے راضی ہوں یا نہ ہوں، وہ فراز نے ایک فیصلہ کیا تھا، سارا کو لے کر بھاگ جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، فراز اپنے عشق کی خاطر ہر حد پار کرنے کو تیار تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ فراز کی محبت اس کے لیے موت کا پیغام بن گئی۔ یہی وہ بات تھی جس نے سام کے دل میں شک کے بیج بو دیے تھے۔ وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ سارا اس کے بھائی کی موت کی وجہ ہے، اور جب دل پر وار ہوتا ہے تو انسان دلیلیں نہیں سنتا، صرف بدلہ سوچتا ہے۔ سام کے چہرے پر ایک جذبہ تھا، انتقام، ایک بھائی کا درد، ایک یتیم ہو چکے خاندان کی چیخیں، اور سارا کا چہرہ جو اب صرف زخم دیتا نظر آتا ہے۔ ناظرین، یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ سام جو کل تک سارا کو اپنی بھابھی ماننے کو تیار تھا، اب اس سارا کو برباد کرنے کے لیے پر تول رہا ہے، اور دوسری طرف سارا جو خود حیران و پریشان ہے کہ آخر اس پر الزام کیوں لگایا جا رہا ہے۔ کیا وہ واقعہ معصوم ہے، یا اس کی خاموشی کس گناہ کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے؟ اور سچ تو یہ ہے ناظرین، سارا نے سب کچھ پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ سارا فراز کو کبھی اپنا نہ مان سکی۔ وہ تو کسی اور کے ساتھ شادی کرنے والی تھی۔ وہ فراز کی محبت کو ایک تماشا سمجھتی رہی، اور فراز وہ تو ہے جب بیچارہ خواب دیکھتا رہا، دل دیکھتا رہا۔ ناظرین، جب کوئی اپنی محبت میں اندھا ہو جائے اور سچ اور جھوٹ کا فرق بھول جائے، لیکن اب سام خاموش نہیں بیٹھے گا۔ وہ اپنے بھائی کے لیے انصاف لے گا، سارا کو اس کے ہر فریب کا حساب دینا ہوگا۔ یہ بدلہ صرف ایک شخص کا نہیں، یہ انتقام ہے، ایک بھائی کے رشتے کا، ایک گھر کی بربادی کا۔ ناظرین، آپ کے خیال میں کیا سام صحیح کر رہا ہے؟ کیا سارا واقعہ قصوروار ہے، یا اس کے پیچھے بھی کوئی اور راز چھپا ہوا ہے؟ کیا فراز کا قتل صرف اتفاق تھا، یا کوئی سوچی سمجھی سازش؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ اس کہانی کے کس کردار کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ یہی تو وہ پلیٹ فارم ہے جہاں کہانی صرف کہانی نہیں ہوتی، ایک جذبہ بنتی ہے، ایک سفر جو ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کا دل کس طرف ہے، سام کی طرف یا سارا کی طرف۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور موڑ، ایک اور راز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل امراض۔ اس کی جس نے واقعہ دل دلا دی ہے، جی ہاں، وہ لمحہ جب سام کا بھائی فراز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ فراز کا قتل ایک ایسا صدمہ جس نے سام کی دنیا اندھیر کر دی۔ وہ فراز جو ہمیشہ ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لاتا تھا، آج خود کسی کا شکار بن گیا۔ لیکن ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کے قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ اب بات کرتے ہیں اس لمحے کی جب سام کو پتہ چلتا ہے کہ فراز کے مرنے سے کچھ لمحے پہلے وہ سارا سے بات کر رہا تھا کہ سارا جس سے وہ دل و جان سے محبت کرتا تھا، وہی سارا جس سے فراز اپنی دلہن بنانا چاہتا تھا۔ اس کے گھر والے راضی ہوں یا نہ ہوں، وہ فراز نے ایک فیصلہ کیا تھا، سارا کو لے کر بھاگ جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، فراز اپنے عشق کی خاطر ہر حد پار کرنے کو تیار تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ فراز کی محبت اس کے لیے موت کا پیغام بن گئی۔ یہی وہ بات تھی جس نے سام کے دل میں شک کے بیج بو دیے تھے۔ وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ سارا اس کے بھائی کی موت کی وجہ ہے، اور جب دل پر وار ہوتا ہے تو انسان دلیلیں نہیں سنتا، صرف بدلہ سوچتا ہے۔ سام کے چہرے پر ایک جذبہ تھا، انتقام، ایک بھائی کا درد، ایک یتیم ہو چکے خاندان کی چیخیں، اور سارا کا چہرہ جو اب صرف زخم دیتا نظر آتا ہے۔ ناظرین، یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ سام جو کل تک سارا کو اپنی بھابھی ماننے کو تیار تھا، اب اس سارا کو برباد کرنے کے لیے
पर तोल रहा है और दूसरी तरफ सायरा जो खुद हैरान और परेशान है कि आखिर उस पर इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है, क्या वो वाकया मासूम है या उसकी खामोशी किस गुनाह को छुपाने की कोशिश कर रही है। और सच तो ये है नाजरीन, सारा ने सब कुछ पहले से तय कर रखा था कि सारा फराज को कभी अपना ना मान सकी। वो तो किसी और के साथ शादी करने वाली थी। वो फराज की मोहब्बत को एक तमाशा समझती रही और फराज वो तो है जब बेचारा ख्वाब देखता रहा, दिल देखता रहा। नाजरीन, जब कोई अपनी मोहब्बत में अंधा हो जाए और सच और झूठ का फ़र्क भूल जाए, लेकिन अब साम खामोश नहीं बैठेगा। वो अपने भाई के लिए इंसाफ लेगा। सारा को उसके हर फरेब का हिसाब देना होगा। ये बदला सिर्फ एक शख्स का नहीं, ये इंतकाम है एक भाई के रिश्ते का, एक घर की बर्बादी का। नाजरीन, आपके ख्याल में क्या साम सही कर रहा है? क्या सायरा वाकया कसूरवार है या उसके पीछे भी कोई और राज छुपा हुआ है? क्या फराज का कत्ल सिर्फ इत्तेफाक था या कोई सोची समझी साजिश? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इस कहानी के किस किरदार के साथ हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यही तो वो प्लेटफॉर्म है जहां कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक जज्बा बनती है, एक सफ़र जो हम आपके साथ करते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपका दिल किस तरफ है, शाम की तरफ या सारा की तरफ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मोड़, एक और राज के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अमराज। इसकी केस जिसने वाकया दिल दिला दी है, जी हाँ, वो लम्हा जब शाम का भाई फराज हमेशा के लिए खामोश हो गया। फराज का कत्ल एक ऐसा सदमा जिसने शाम की दुनिया अंधेर कर दी। वो फराज जो हमेशा हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता था, आज खुद किसी का शिकार बन गया। लेकिन नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसके कत्ल का जिम्मेदार कौन है। अब बात करते हैं इस लम्हे की जब शाम को पता चलता है कि फराज के मरने से कुछ लम्हे पहले वो सारा से बात कर रहा था कि सारा जिससे वो दिल और जान से मोहब्बत करता था, वही सारा जिससे फराज अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। उसके घर वाले राजी हों या ना हों, वो फराज ने एक फैसला किया था, सारा को लेकर भाग जाएगा। जी हाँ नाजरीन, फराज अपने इश्क की खातर हर हद पार करने को तैयार था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फराज की मोहब्बत उसके लिए मौत का पैगाम बन गई। यही वो बात थी जिसने शाम के दिल में शक के बीज बो दिए थे। वो समझ बैठा था कि सारा उसके भाई की मौत की वजह है, और जब दिल पर वार होता है तो इंसान दलीलें नहीं सुनता, सिर्फ बदला सोचता है। शाम के चेहरे पर एक जज्बा था, इंतकाम, एक भाई का दर्द, एक यतीम हो चुके खानदान की चीखें, और सारा का चेहरा जो अब सिर्फ जख्म देता नजर आता है। नाजरीन, यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। शाम जो कल तक सारा को अपनी भाभी मानने को तैयार था, अब उस सारा को बर्बाद करने के लिए पर तोल रहा है। और दूसरी तरफ सायरा जो खुद हैरान और परेशान है कि आखिर उस पर इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है, क्या वो वाकया मासूम है या उसकी खामोशी किस गुनाह को छुपाने की कोशिश कर रही है। और सच तो ये है नाजरीन, सारा ने सब कुछ पहले से तय कर रखा था कि सारा फराज को कभी अपना ना मान सकी। वो तो किसी और के साथ शादी करने वाली थी। वो फराज की मोहब्बत को एक तमाशा समझती रही और फराज वो तो है जब बेचारा ख्वाब देखता रहा, दिल देखता रहा। नाजरीन, जब कोई अपनी मोहब्बत में अंधा हो जाए और सच और झूठ का फ़र्क भूल जाए, लेकिन अब शाम खामोश नहीं बैठेगा। वो अपने भाई के लिए इंसाफ लेगा। सारा को उसके हर फरेब का हिसाब देना होगा। ये बदला सिर्फ एक शख्स का नहीं, ये इंतकाम है एक भाई के रिश्ते का, एक घर की बर्बादी का। नाजरीन, आपके ख्याल में क्या शाम सही कर रहा है? क्या सायरा वाकया कसूरवार है या उसके पीछे भी कोई और राज छुपा हुआ है? क्या फराज का कत्ल सिर्फ इत्तेफाक था या कोई सोची समझी साजिश? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इस कहानी के किस किरदार के साथ हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यही तो वो प्लेटफॉर्म है जहां कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक जज्बा बनती है, एक सफ़र जो हम आपके साथ करते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपका दिल किस तरफ है, शाम की तरफ या सारा की तरफ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मोड़, एक और राज के साथ। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अमराज। इसकी केस जिसने वाकया दिल दिला दी है, जी हाँ, वो लम्हा जब शाम का भाई फराज हमेशा के लिए खामोश हो गया। फराज का कत्ल एक ऐसा सदमा जिसने शाम की दुनिया अंधेर कर दी। वो फराज जो हमेशा हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता था, आज खुद किसी का शिकार बन गया। लेकिन नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसके कत्ल का जिम्मेदार कौन है। अब बात करते हैं इस लम्हे की जब शाम को पता चलता है कि फराज के मरने से कुछ लम्हे पहले वो सारा से बात कर रहा था कि सारा जिससे वो दिल और जान से मोहब्बत करता था, वही सारा जिससे फराज अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। उसके घर वाले राजी हों या ना हों, वो फराज ने एक फैसला किया था, सारा को लेकर भाग जाएगा। जी हाँ नाजरीन, फराज अपने इश्क की खातिर हर हद पार करने को तैयार था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फराज की मोहब्बत उसके लिए मौत का पैगाम बन गई। यही वो बात थी जिसने शाम के दिल में शक के बीज बो दिए थे। वो समझ बैठा था कि सारा उसके भाई की मौत की वजह है, और जब दिल पर वार होता है तो इंसान दलीलें नहीं सुनता, सिर्फ बदला सोचता है। शाम के चेहरे पर एक जज्बा था, इंतकाम, एक भाई का दर्द, एक यतीम हो चुके खानदान की चीखें, और सारा का चेहरा जो अब सिर्फ जख्म देता नजर आता है। नाजरीन, यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। शाम जो कल तक सारा को अपनी भाभी मानने को तैयार था, अब उस सारा को बर्बाद करने के लिए पर तोल रहा है। और दूसरी तरफ सारा जो खुद हैरान और परेशान है कि आखिर उस पर इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है। क्या वो वाकया मासूम है या उसकी खामोशी किस गुनाह को छुपाने की कोशिश कर रही है। और सच तो ये है नाजरीन, सारा ने सब कुछ पहले से तय कर रखा था कि सारा फराज को कभी अपना ना मान सकी। वो तो किसी और के साथ शादी करने वाली थी। वो फराज की मोहब्बत को एक तमाशा समझती रही, और फराज वो तो है जब बेचारा ख्वाब देखता रहा, दिल देखता रहा। नाजरीन, जब कोई अपनी मोहब्बत में अंधा हो जाए और सच और झूठ का फर्क भूल जाए, लेकिन अब शाम खामोश नहीं बैठेगा। वो अपने भाई के लिए इंसाफ लेगा। सारा को उसके हर फरेब का हिसाब देना होगा। ये बदला सिर्फ एक शख्स का नहीं, ये इंतकाम है, एक भाई के रिश्ते का, एक घर की बर्बादी का। नाजरीन, आपके ख्याल में क्या शाम सही कर रहा है? क्या सारा वाकया कसूरवार है या उसके पीछे भी कोई और राज छुपा हुआ है? क्या फराज का कत्ल सिर्फ इत्तेफाक था या कोई सोची समझी साजिश? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इस कहानी के किस किरदार के साथ हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यही तो वो प्लेटफॉर्म है जहां कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक जज्बा बनती है, एक सफ़र जो हम आपके साथ करते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपका दिल किस तरफ है, शाम की तरफ या सारा की तरफ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मोड़, एक और राज के साथ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अमराज। इसकी केस जिसने वाकया दिल दिला दी है, जी हाँ, वो लम्हा जब शाम का भाई फराज हमेशा के लिए खामोश हो गया। फराज का कत्ल एक ऐसा सदमा जिसने शाम की दुनिया अंधेर कर दी। वो फराज जो हमेशा हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता था, आज खुद किसी का शिकार बन गया। लेकिन नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसके कत्ल का जिम्मेदार कौन है। अब बात करते हैं इस लम्हे की जब शाम को पता चलता है कि फराज के मरने से कुछ लम्हे पहले वो सारा से बात कर रहा था कि सारा जिससे वो दिल और जान से मोहब्बत करता था, वही सारा जिससे फराज अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। उसके घर वाले राजी हों या ना हों, वो फराज ने एक फैसला किया था, सारा को लेकर भाग जाएगा। जी हाँ नाजरीन, फराज अपने इश्क की खातिर हर हद पार करने को तैयार था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फराज की मोहब्बत उसके लिए मौत का पैगाम बन गई। यही वो बात थी जिसने शाम के दिल में शक के बीज बो दिए थे। वो समझ बैठा था कि सारा उसके भाई की मौत की वजह है, और जब दिल पर वार होता है तो इंसान दलीलें नहीं सुनता, सिर्फ बदला सोचता है। शाम के चेहरे पर एक जज्बा था, इंतकाम, एक भाई का दर्द, एक यतीम हो चुके खानदान की चीखें, और सारा का चेहरा जो अब सिर्फ जख्म देता नजर आता है। नाजरीन, यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। शाम जो कल तक सारा को अपनी भाभी मानने को तैयार था, अब उस सारा को बर्बाद करने के लिए
پر تول رہا ہے، اور دوسری طرف سائرہ جو خود حیران و پریشان ہے کہ آخر اس پر الزام کیوں لگایا جا رہا ہے، کیا وہ واقعہ معصوم ہے یا اس کی خاموشی کس گناہ کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور سچ تو یہ ہے ناظرین، سارہ نے سب کچھ پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ سارہ فراز کو کبھی اپنا نہ مان سکی۔ وہ تو کسی اور کے ساتھ شادی کرنے والی تھی۔ وہ فراز کی محبت کو ایک تماشا سمجھتی رہی، اور فراز وہ تو ہے جو بیچارہ خواب دیکھتا رہا، دل دیکھتا رہا۔ ناظرین